Hello everyone, welcome to Nishan's online digital platform. Today we are going to discuss class 10 CBSE board exam paper of set 3. So first question of physics is, this is first question, this is not physics question. First question is, okay, this is a question. The question is, consider the following ray diagram. ray diagram जो है अपने को given है, एक प्रिज्म है. This is a prism angle. This is prism angle A. Okay, incident light ray which is incident on the surface of a prism, and this is refracted, and finally this is emerge out. So what is the question here? The angle of incidence and angle of deviation respectively are. एक तो अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है. तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ में जो फॉर्म करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. तो जनरली एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल क्या होता है? ई, मतलब डेल. लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या सिंबल दिया गया है? ई. तो E is the angle of deviation. So answer will be B and E. B and E means C is the correct answer. Okay, next question is, in order to obtain large image of the teeth, of patients, the dentist holds the concave mirror in such a manner that the teeth are positioned. Okay. So answers will be at the focus of the mirror, between pole and focus of the mirror, between focus and center of curvature of the mirror, at the center of curvature of the mirror. तो जो इमेज बनता है वो एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है. तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is chemistry's question. This is also of chemistry. The pattern of the magnetic field. Okay, this is the question. The pattern of the magnetic fields of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का आई बासन में, वो सोलेनॉइड के लिए और बार मैग्नेट के लिए सेम होता है. फील्ड लाइन जो होती है उसमें भी नॉर्थ साउथ होते हैं, सोलेनॉइड में भी, और बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ होते हैं. Field lines used to move from north to south outside the magnet and moves inside the magnet from south to north. Okay, this is correct. The pattern of the magnetic field around a current carrying conductor is independent of the shape of the conductor. It is a wrong answer. Shape पे depend करता है. For a straight wire, for a straight conductor, magnetic field lines are concentric circles. For a loop, magnetic field lines are uniform along the axis of the loop, and at the ends, at the corners, magnetic field lines are as a concentric circles. So these are different, and for solenoid also magnetic fields are variable. So this is a wrong answer. So A is correct and R is wrong. Okay. The next question is, okay, during an experiment a student observes that the given mirror is forming an erect and diminished image. Image कैसा बन रहा है? Erect and diminished from all position of the object placed in front of it. आई बासन में कैसा हो रहा है? मिरर के सामने जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड और इरेक्ट इमेज बन रही है. आइडेंटिफाइड द मिरर. अपने को पता है कि दोनों केसेस में या ऑल केसेस में जो कॉन्वेक्स मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? डिमिनिस्ड होती है एंड वर्चुअल इमेज होती है. तो आइडेंटिफाइड द मिरर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो मिरर होगा वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, write the magnitude of the magnification in this case. जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे
तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको पता है जो इमेजेस बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल. इफ इमेज इज वर्चुअल देन मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव. तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. तो मैग्निफिकेशन विल बी +m. नेक्स्ट वन बी, what will be the radius of curvature of the mirror if the focal length is 20 सेंटीमीटर. अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल ऑफ दी फोकल लेंथ. अब फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो पॉजिटिव होती है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40 सेंटीमीटर. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके. Next one is determine the maximum and minimum resistance which can be obtained by joining the 5 resistors 1/5 ohm of the each. तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो अपने को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन मिलता है. तो 5 रेजिस्टर्स को अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज R1 मीन्स 1/5 + 1/5 + 1/5. तो 5 रेजिस्टर्स को अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 5/5, तो कितना हो जाएगा 1 ओम. दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल की बात करें 1/R इक्विवेलेंट इज व्हाट, 1 क्या है 1/5, तो 1/5 तो ये 5, तो ये 5. और यहाँ पे भी अगर बात करें क्या हो जाएगा, 5/1, 5/1. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स तो 25. तो R इक्विवेलेंट इज व्हाट, 1/25. सो दिस इज मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो दोनों हमसे पूछा था मैक्सिमम मिनिमम, वो हमने दोनों बताया. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 4 ohm रेजिस्टर दैट प्रोड्यूसेस 100 जूल ऑफ हीट एवरी सेकेंड. टाइम का वैल्यू दे रखा है. अब अपने को पता है जनरेटेड हीट के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं. तो जो जनरेटेड हीट है एक तो फॉर्मूला VIT होता है, एक VI²RT होता है, एक V²T/R हो जाएगा. तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है आई वर्सन में, एक हीट गिवन है और दूसरा टाइम के अमाउंट गिवन है. तो हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो लास्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. तो हीट के लिए क्या हो जाएगा, 100 जूल. V जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया है, T की वैल्यू 1 सेकेंड है फॉर एवरी सेकेंड एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम. तो V² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400. देन V विल बी 20 वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके ओके, ये बायो का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज स्टडी द इम्पोर्टेंट फंक्शन द फिगर. ओके, ये भी क्वेश्चन है. ओके ये भी केमिस्ट्री का है. क्वेश्चन नंबर दिस, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड. ओके, दिस इज द फिजिक्स क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अ केस in which a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. If a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then we know that there will be a force experienced by the current carrying conductor. Last 3 factors on which magnitude of the force acting on the conductor depends. तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है एक तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आई बस में फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये अपन ने तीनों पे डिपेंडेंसी बताई. व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन द कंडक्टर मैक्सिमम. फोर्स कब मैक्सिमम होगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. और करंट एलिमेंट एक्चुअल में अपन को करंट एलिमेंट या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ही बोल सकते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होगा देन फोर्स विल बी मैक्सिमम. नेम द रूल व्हिच हेल्प्स द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन. आई भाषण में एक एप्लीकेशन भी अपने को बताना है और अपने को रूल बताना है कि हाँ किस तरीके से होता है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू अपन देखते हैं, जिसमें जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करता है और थंब जो होता है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है.
तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक आर्मेचर जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है इनसाइड अ मोटर। तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मान लो इसमें करंट जो है आई बासन में इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये पी क्यू आर एस एक आर्मेचर है एंड करंट का डायरेक्शन इन पी क्यू इज अपवर्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन फोर्स विल बी, magnetic field be in this direction, current will be in this direction, then force will be inward। तो इसमें फोर्स कैसी होगी, इनवर्ड होगी। और वही करंट अगर यहाँ पे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, करंट ऐसा होगा, तो फोर्स विल बी आउटवर्ड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। एक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 ओम। जो उसका रेडियस है वो अगर बात करूंगा तो 0.01 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 44 इंटू 10, इसका पावर होगा, वो हम क्वेश्चन में करेक्शन देखते हैं। तो इसका पावर जो दे रखा है वो क्या गिवन है, कितना है, 44 इंटू 10⁻⁻6। कितना गिवन है, 44 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा गिवन है। ओम इंटू मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। अपने को लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है, डन। अच्छा, रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू ρl डिवाइड बाय A, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ। तो लेंथ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय रो। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना है, 7 ओम। एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14, और रेडियस जो दे रखा है, रेडियस जो है वो अगर बात करूंगा तो सेंटीमीटर में है, तो 0.01 तो 1/100, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻2 से, तो 1/10⁻4 ये हो जाएगा। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया। एंड रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी इज 44 इंटू 10⁻⁻6 ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 ओम डाली अपन ने, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर से 3.14, एंड रेडियस कितना है 0.01 सेंटीमीटर विच इज 1/10⁻4 मीटर। तो इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर 49.9 आई बासन में मीटर आ जाएगा, क्योंकि अपन सब एमके से ऐसे ही सिस्टम में वैल्यूज पुट किए। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is the power of a lens is -0.5 diopter. It means lens is concave lens. इसका पावर नेगेटिव है और कॉन्केव लेंस का पावर जो होता है नेगेटिव होता है। Based on this information, find out the types of lens and its focal length. इसका फोकल लेंथ बताना और लेंस का टाइप बताना। तो लेंस का टाइप तो क्या है, कॉन्केव लेंस है, क्योंकि नेगेटिव पावर है। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इज व्हाट, 1/पावर। सो फोकल लेंथ इज 1/पावर। पावर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25 डायोप्टर। अगर ये डायोप्टर में तो ये पॉइंट हटते ही कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे अगर बात करूँ कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 मीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा आई बासन, और 400 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। द आई डिफेक्ट फॉर विच इट मे बी यूज एज अ करेक्टिव लेंस। आई बासन किस आई डिफेक्ट में अपन इस लेंस को यूज में लेते हैं, तो दिस इज अ कॉन्केव लेंस, और मायोपिया में अपने को पता है अपन कॉन्केव लेंस को यूज में लेते हैं। द नेचर एंड साइंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव लेंस के कहाँ पे रखा हुआ है, f और 2f के बीच में। दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2, दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। The nature and size of the image formed by this lens when an object is placed between f and 2f। f और 2f के बीच में अपन प्लेस करेंगे, कॉन्केव लेंस है, तो इस केस में लाइट रेज जो जाएगी वो इससे डाइवर्ट हो जाएगी। आई बासन में एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो एक इस तरीके से इमेज मिलेगा क्या। सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो नेचर तो क्या होगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और आई बासन में साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड इमेज है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। अपने से नेचर आई बासन में पूछा गया था और साइज पूछा गया था, तो डिमिनिश्ड इसका साइज होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। सेल्फ
ये अपना क्वेश्चन नहीं है. नेक्स्ट लिस्ट 3 रॉ मटेरियल्स. नेक्स्ट 32. Next question is show that the formation of aluminum nitrate, right? Chemical formation of both. Okay. Define the term functional group. Name the process of conversion ethanol. Name 2 cycle hydrocarbons. And this is the given situation and into the possible reason for it. Right. Okay. ये भी हमारा explain 2 reason with the need of chemical. Differentiate between. ये भी हमारा question नहीं. Okay. So here is also a question. Question is observe the following diagram and compare speed of light and optical densities of the 3 mediums A, B, C. एक तो अपने को स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना है और ऑप्टिकल डेंसिटीज को कंसिडर करना है. अच्छा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका डेंसिटी भी हाई होता है. तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो अगर बात करो ट्रेवल कर रही है और लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट मूव कर रही है. इट मीन्स बोथ मीडियम्स आर सेम. इट मीन्स दोनों मीडियम्स का डेंसिटी सेम है. अच्छा, डेंसिटी सेम है तो कोई डेंसिटी का वेरिएशन नहीं है तो वेलोसिटी भी सेम होगी. तो ए मीडियम का वेलोसिटी बी मीडियम के वेलोसिटी के इक्वल होगा. एंड ऑल्सो की दूसरा अगर बात करूं अपने को थर्ड मीडियम के लिए भी बात करनी है. थर्ड मीडियम के लिए जो वेलोसिटी है, अच्छा लाइट रे जो होती है वो नॉर्मल से अवे हो रही है, नॉर्मल से अवे हो रही है, तो दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेरर मीडियम. तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज हैं वो ए और बी की वेलोसिटी सेम है क्योंकि देयर इज नो डेविएशन इन द लाइट रे. और यहाँ पर जो वेलोसिटी है डेंसर मीडियम का वेलोसिटी कम होता है, रेरर मीडियम का वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सी मीडियम इज हायर देन टू बोथ. ओके. अच्छा, डेंसिटीज की बात करें तो ए और बी का जो डेंसिटी होगा वो सेम होगा क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे देयर इज नो डेविएशन, तो ए और बी का डेंसिटी सेम होगा. और अगर ये डेंसर मीडियम है तो इस केस में डेंसिटी सी के कंपैरिजन में क्या होगा, हाई होगा. तो डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड डेंसिटी ऑफ ए एंड बी इज मोर देन टू डेंसिटी ऑफ सी. ओके. ऑप्टिकल डेंसिटी इज द 3 मीडियम. दिस ये हो गया. ऑल्सो गिव्स जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द 2 केसेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ए, बी एंड सी. अच्छा, ऑल्सो गिव जस्टिफिकेशन फ्रॉम फॉर योर आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द 2 केसेस इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ए, बी एंड सी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी आर सेम. So refractive indexes are directly proportional to density. So densities are same. So refractive index will also be same. And in case of refractive index between B and C, refractive index of B is more than to refractive index of C because this is a denser medium, this is a rarer medium. So this is the answer for this question. Okay. Redraw the path of a ray of light through the 3 medium if the ray of light is starting from a medium A falls on the medium B. Redraw the path of a ray of light through the 3 medium if the ray of light is starting from medium A falls on the medium B. ठीक है, अपने को वापस से रीड्रॉ करना है. The path of a ray of light through the 3 medium if the ray of light is starting from medium A falls on the medium B. Okay, डायग्राम पे आते हैं पर. तो इसका A पार्ट था. B पार्ट में अगर बात करूंगा तो अपने को क्या करना है, आई बात समझ में, पहले तो रीड्रॉ करना है. ऑब्लिकली द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ मीडियम B इज मेड मोर देन द A एंड C. B का जो डेंसिटी है वो अगर बात हो A और C के ज्यादा हो गया, A और C से B का डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो B का डेंसिटी ज्यादा हो गया तो A रेरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, A किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये ऐसा. तो B का डेंसिटी A के डेंसिटी से हाई है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो दिस इज अ रेरर मीडियम, जिसका डेंसिटी हाई है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. और यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर बात हो B का डेंसिटी C के डेंसिटी से भी हाई है, तो अगेन बेंडिंग होगी और फिर से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. सो दिस इज द डायग्राम. ओके.
द रे फॉल्स नॉर्मली फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए से बी ते नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ स्लैब, देन लाइट रेज मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। तो बिना किसी डेविएशन के लाइट रेज क्या करेगी, स्ट्रेट मूव करती है। किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, अदरवाइज लाइट रेस अगर किसी स्लैब के या फिर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट मूव करती है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज distances with object distances in case of a convex lens and answer the questions that follow without doing any calculation। आई बस अपने को कुछ आंसर्स बताने, किस किस के आंसर बताए। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने को फोकल लेंथ बताना है। आई बस दिस इज अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में सबसे पहले इससे अपन फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, इससे 25 और 100 से निकाल लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू v जो इमेज डिस्टेंस है विच इज 100 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस का 25 तो प्लस 1/25 ऐसा होगा। इमेज डिस्टेंस इज 100 एंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 5 डिवाइड बाय 100 तो कितना हो जाएगा 20। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इसका फर्स्ट पार्ट। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ऑब्जर्वेशन नंबर 3। आपको मैग्निफिकेशन बताना है इमेज का, किसमें, ऑब्जर्वेशन 3 में। तो ऑब्जर्वेशन 3 में मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, मैग्निफिकेशन इज v डिवाइड बाय u। v का जो वैल्यू है वो कितना है 60 सेंटीमीटर एंड u इज माइनस 30 सेंटीमीटर, यही है। तो लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v डिवाइड बाय, अगर ये मिरर होता माइनस v डिवाइड बाय u, लेंस के केस में v डिवाइड बाय u होगा। तो v की वैल्यू क्या है, थर्ड केस में 60 सेंटीमीटर एंड u इज माइनस 30 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा -2। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अगर बात करूँ दोनों केसेस में 1 और 2 में सेम है। लिस्ट 2 डिफरेंसेस इन द इमेजेस फ्रॉम दीज 2 केसेस। आपको 2 डिफरेंस बताने जो इमेज फॉर्म हो रहा है। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन अगर अपन देखते हैं तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट केस इज -60 डिवाइड बाय -15। ओके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करो मैग्निफिकेशन निकालेंगे इन सेकंड केस तो 100 डिवाइड बाय 25 आई बात है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन। अब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज विल बी वर्चुअल। तो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज विल बी रियल। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट, तो ये इरेक्ट होगा। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड, तो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। हमें 2 डिफरेंस दिखाने थे तो दोनों डिफरेंसेस हमने दिखाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 the magnetic field lines. Okay, this is the question of physics. In order to obtain magnetic field lines around a bar magnet, a student performed an experiment using a magnetic compass and a bar magnet. Okay, so this is the diagram of magnetic field lines around a bar magnet. The magnet was placed on sheet on white paper fixed on a drawing board. Using the magnetic needle, he obtained the paper and the pattern of the magnetic field lines as shown below around the bar magnet. तो ये डायग्राम गिवन है। By convention, the field lines emerge from north pole and merge at south pole. ये हमने देखा है, फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज आउट होती है और मर्ज किस में करती है, साउथ पोल में।
आई बात समझ में? इसका आंसर अपने को देना है क्योंकि जो फील्ड लाइन्स है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस का पाथ चूज करती है। आई बात समझ में? तो वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस का पाथ चूज करती है और क्लोज लूप भी बनाती है। तो क्लोज लूप और स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस के पाथ के लिए वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करती है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। State the relationship between strength of the magnetic field and the degree of closeness of the field lines। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फील्ड लाइन्स अगर क्लोज हैं, मतलब फील्ड लाइन्स अगर नियरर है आई बात समझ में, तो फिर उस केस में स्ट्रेंथ क्या होगा? हाई होगा। आई बात समझ में? स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी? हाई होगी। और फील्ड लाइन्स आर सेपरेटेड फार अपार्ट, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लो। तो हमसे दोनों में रिलेशन पूछा है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस। ओके, so this is the answer for this question. Now two field lines can never intersect each other, give reason. No, two field lines are never intersect with each other because at the point of intersection, if we draw two field lines, then at the point of intersection there will be two different directions of a point, which is impossible. So we can say two field lines are never intersect with each other. The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. Uniform magnetic field अपने को दिखाना है, तो जब भी field lines parallel होती है एक साथ एक दूसरे के साथ, तो this is parallel uniform magnetic field. Okay, तो ये भी हमने देखा। Draw the pattern of the magnetic field lines through and around current carrying solenoid. करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो अपने को ड्रॉ करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो अलोंग द एक्सिस स्ट्रेट होती है और जो कॉर्नर पे वो थोड़ा सा बेंड करके ऐसे कर्व्ड पाथ बनाती है। सो दिस इज द पैटर्न फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड। व्हाट डज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड रिप्रेजेंट? दैट द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये पैटर्न हमें क्या शो करता है कि किसी सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसे होता है? यूनिफॉर्म फील्ड होता है। फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती है, तो फील्ड कैसे होती है? यूनिफॉर्म फील्ड होती है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, डिपेंडेंसी ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाई डज कार्बन शेयर्स, ये भी है। इन बीइंग देयर इज 3 pairs of the chromosomes. What is the chromosomes? Is the pair. Mention the 2 example of animal. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी जो भी कुछ भी जो इससे रिलेटेड जो भी फिजिक्स या 10 से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आगे क्लासेस के लिए, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।